ہماری یہ غزل ہے ناصر کاظمی کی، اور غزل کا آپ کو پتہ ہے کہ نام نہیں ہوتا، غزل کا جو پہلا مصرع ہے وہی غزل کا نام ہوتا ہے۔ غم ہے یا خوشی ہے، غزل کا نام یہ ہوگا، غم ہے یا خوشی ہے۔ یہ اس کا دوسرا شعر ہے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے۔ غزل کے جو بنیادی موضوعات ہوتے ہیں ان میں یاد رکھنے کی 4 باتیں ہیں۔ غزل کے بنیادی موضوعات، نمبر 1 ہے ما بعد الطبیعیات۔ میں لفظ کو پھر بولوں گا، اس کا تلفظ صحیح یاد رکھیں۔ اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں ما بعد الطبیعیات، یہ غلط ہے۔ عربی میں بعد، بعد نہیں، بعد بھی عربی کا لفظ ہے، بعد بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں بعد ہے۔ بعد منی دوری، ماورائیت۔ اب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ ما بعد الطبیعیات، اور 99% پڑھے لکھے بندے اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، لیکچر میں ما بعد، پروفیسر ما بعد الطبیعیات، وہی غلط ہے۔ اب انہیں غلطی لگتی کہاں سے ہے؟ وہ دیکھتے ہیں میٹا فزکس۔ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ میٹا فزکس جو لکھنا ہی غلط ہے، یہ میٹا MAT ہے، میٹا فزکس۔ ما بعد الطبیعیات، بعد نہیں پڑھنا۔ اقبال کا جو PhD کا تھیسس تھا جرمنی میں، وہ یہی تھا کہ ایران میں فلسفہ ما بعد الطبیعیات کا ارتقا۔ طبیعیات نہیں پڑھنا، طبیعیات، کیا میں نقطہ لگا دوں، ایک تو اس لفظ کو سمجھے۔ کیونکہ آدمی کی جہالت وہ تلفظ سے ہی واضح ہو جاتی ہے، آپ نے لفظ کو صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے۔ اردو میں فزکس کو کہتا ہے طبیعیات، طبیعیات نہیں، طبیعیات، جیسے اکنامکس معاشیات، بایولوجی حیاتیات، تو یہ فزکس اسے کہتے ہیں طبیعیات۔ وہ چیزیں جن کا مادی وجود ہے، وہ چیزیں جن کا مادی وجود ہے، چاہے وہ نظر آتی ہیں چاہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن ان کا مادی وجود ہے، تو یہ فزکس ہے۔ اب وہ باتیں جن کا مادی وجود نہیں، جو ہماری 5 سینسز میں کسی صورت نہیں آ سکتی، آپ اسے امیجن بھی کریں گے تو آدھا ادھورا کریں گے، اسے کہتے ہیں ما بعد الطبیعیات۔ تو غزل کے بنیادی جو موضوعات ہیں ان میں ایک ہے ما بعد الطبیعیات، حسن و عشق، انقلاب، یہ بعد میں آیا، اخلاق، آپ کہہ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اخلاق۔ اب اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ غالب نے کہا ہر چند و مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ مشاہدہ حق، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، حق کو دیکھنا، تو ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا، چھوڑے نہ گو خلق مجھے کافر کہے بغیر۔ یہ غالب کی غزل ہے اسی قطعے میں۔ غالب نے ہی دوسرا کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ما بعد الطبیعیات۔ اب حسن اور عشق، عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ غزل حسن اور عشق کی بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اردو غزل میں صرف حسن اور عشق نہیں ہے، حسن اور عشق 10% ہوگا، 20%، بڑا زور لگا 20% ہوگا، لوگ کیوں پتہ نہیں الگ دیکھیں خامخواہ، لیکن یہ اصل ہے۔ آپ کہیں کہ شاعری شروع اسی سے ہوتی ہے۔ حسن کیا ہے؟ حسن ہے تناسب اعضاء، یہ ذہن میں رکھنا ہے اسٹوڈنٹس، تناسب اعضاء۔ لیونارڈو دا ونچی ایک بڑا نام گزرا ہے سائنس کی دنیا میں، 500 سال پہلے، اٹیلین تھا۔
उसने कहा था कि इंसान के चेहरे में और इसकी बनावट में मैथ इन्वॉल्व है, आजाद मुतनासिब हूं, यानी आपकी उंगलियां 2 फुट की हो जाए तो कितनी भद्दी लगेंगी, हाथ से निकल गई। बड़ी ऊंची नाक है ओके, लेकिन एक्स्ट्रा ऊंची हो तो वो हाथी की सूंड हो जाएगी। अब अगली बात है इश्क। इश्क क्या है? हुक्मा ने इश्क को अक्ल की बीमारी लिखा है, अक्ल की बीमारियों में शुमार किया है। अल्लामा अब्दुल अजीज बिराड़वी ने भी इसको अक्ल की बीमारी लिखा है। गालिब को फिर कोट कर लेते हैं, मुझे खामखा याद आ जाता है, ठीक है ना। उसने कहा था बुलबुल के कारोबार पे है खंदाए गुल, बुलबुल के कारोबार पे है खंदाए गुल। कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का, कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का। बुलबुल के कारोबार पे है खंदाए गुल, बुलबुल जाती है इश्क का इजहार करने गुलाब के फूल के पास, लेकिन वो फूल हंसते हैं कि कैसा बेवकूफ है, क्या कहने आ गया। कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का। तो इश्क वो कैफियत है मुख्तसरन कि जब किसी शख्स की हर बात अच्छी लगे। अशफाक अहमद ने कहा, मेरे बेटे ने पूछा कि महबूब क्या होता है, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो जरा पापा बात बनाता था ना, मां से पूछो, बाद में पूछा, कहा मुझे नहीं पता महबूब क्या होता है। तो बेटे ने ताना दिया, घर में 2 अदीब है, किसी को ये नहीं पता महबूब क्या होता है। कहता मैं अपने मुर्शिद के पास गया, बाबा जी जिसे वो कहता था। मैंने कहा बाबा जी घर में बेइज्जती हो गई है, बेटे ने पूछा महबूब क्या है, ना मुझे पता है ना मेरी बीवी को, वैसे आप बड़े अदीब है। तो उसने कहा बेटा जिसका उल्टा भी सीधा नजर आए वो महबूब होता है। क्या? जिसका उल्टा भी सीधा नजर आए उसे महबूब कहते हैं। तो इश्क वो कैफियत है कि जब आपको किसी शख्स से मखसूस की हर बात अच्छी लगे। नूरजहां 2 गाने गाती थी, गोरा नी रंग गोरा सब रंगाना सरदार, मैनू हर कोई करदा प्यार ते कालिया ना मुल कोई ना। जब उसका महबूब भी गोरा था, फिर किसी काले के इश्क में तो काला शाह काला, वो भी तो उसी का था ना, क्यों नहीं। तो बात यह है कि महबूब जैसा है वैसा खूबसूरत है। आप ये ना कहेंगे मेरा महबूब फेयर एंड लवली लगा कि गोरा हो तो फिर प्यार करूंगा, वो काला है तो काला ठीक है, गोरा है तो गोरा ठीक है। बात समझे। अब आते इनकलाब, बल्कि अखलाक। शुअरा गजल में अखलाक की भी तालीम देते हैं। गालिब ने कहा बख्श दो घर खता करे कोई, बख्श दो घर खता करे कोई, ये गजल है पूरी उसकी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, उसी गजल में ये शेर है। अगली बात है इनकलाब, ये बहुत बाद में शायरी में गजल में आया है। जब तरक्की पसंद तहरीक आ गई, उससे पहले इकबाल का जमाना, हसरत मोहानी का जमाना, तो इन लोगों ने इनकलाबी बातें भी गजल के साथ में कही है। तो हमारे इस शेर में, ये जो शेर है हमारा, इसमें ये बात हो रही है हुस्न और इश्क की। शायर अपने महबूब से कह रहा है कि मैं कहीं भी हूं, मेरा कंफर्ट जोन आप है, कहते हैं ना, ये मेरा कंफर्ट जोन है। दुख दर्द इंतहा को हो जाए, कुछ हो जाए, परेशानी हो माली जिस्मानी, लेकिन कितनी ही आफतें हों, महबूब का नजर आना भी, उसकी मुलाकात भी, उसका आ जाना भी सुख है। आफतें ऐसे लगता है खत्म हो गई, और खाली उसका ख्याल आ जाए तब भी ऐसे फील होता है। मसलन उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके आ जाने से वो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये भी शेर गालिब है।
جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سوال اچھا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دور تو آفتوں کا ہے. ناصر کاظمی کی زندگی میں سب سے بڑی آفت جو آئی ہے وہ ہجرت ہے 1947 کی، جب اسے اپنا شہر دلی چھوڑنا پڑا، اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا، اجڑ گئے لوگ. انسانی تاریخ کی اس وقت تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے یہ. 71 لاکھ بندے پاکستانی علاقوں سے انڈین علاقوں میں گئے اور 71,65,000 وہاں سے آئے. ٹوٹلی 1.5 کروڑ بندہ ڈسپلیس ہو گیا، ہزاروں راستے میں مر گئے. کلیم کیا جاتا ہے 10 لاکھ بندے مرے. 1 لاکھ تو ماؤنٹ بیٹن نے خود کلیم کیا، حالانکہ اسے فیس سیونگ بھی چاہیے تھی. تو یہ جو ہجرت تھی 47 کی، وہ کہتا ہے آفتوں کے دور میں اے محبوب میں کتنی ہی آفت میں ہوں، لیکن چین کی گھڑی تو ہی ہے. وہ وقت جو آپ کے ساتھ گزر جاتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں، خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں، جمال یار تیری جھلکیاں گلاب کے پھول، تیری جھلکیاں گلاب کے پھول. محبوب نہیں، محبوب کا خیال آنا بھی کیا ہے، ایسے جیسے گلاب کے پھول کھل گئے. تو اب ہمارا یہ تیسرا شعر ہے. میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے. اب یہاں دیکھیں، غزل میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر میں نئی بات ہے، لیکن کبھی کبھی شاعر ایک ہی خیال کو آگے لے کے چلتا ہے ہر شعر میں. اسے کہتے ہیں مسلسل غزل. یہ غزل پوری طرح مسلسل نہیں ہے، لیکن بہت سے اشعار مسلسل آ رہے ہیں، ایک ہی خیال کو مختلف انداز سے شاعر بیان کر رہا ہے. اب یہاں بھی وہ اپنے محبوب سے. اچھا، یہ محبوب کوئی ضروری نہیں کہ کوئی فیمیل ہو، یا فیمیل کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا محبوب کوئی میل ہو، بالکل نہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دوں. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 7 زبانوں کے شاعر ہیں، بیسیکلی سرائکی کے. انہیں اپنے بڑے بھائی سے عشق تھا، خواجہ فخر الدین سے، فخر جہاں. خواجہ فخر جہاں ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کو اپنے بڑے بھائی سے عشق تھا. یہ عشق ضروری نہیں کہ لوگوں نے غلط ایسے بنا لیا ہوا کہ جب بھی عشق کا نام آئے گا تو کچھ اور ہی دماغ میں آ جائے گا. اچھا، مومن خان مومن بڑا شاعر ہے اردو کا. بہت سے نقادوں نے اردو کا سب سے اچھا شاعر مومن کو مانا ہے، جس کے ایک شعر پہ کہتے ہیں غالب فدا ہو گیا تھا. بالکل سادہ شعر تھا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. گویا حقیقت نہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس شعر پہ غالب تڑپ اٹھا تھا، کیا کمال کر دیا تم نے. ٹھیک. تو مومن خان مومن اتنا بڑا نام، وہ عاشق تھا مولانا فضل حق خیر آبادی کا، جس نے فتویٰ دیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کا، اور یہ کالا پانی میں فوت ہوئے، انگریز نے گرفتار کر لیا. اب یہ ضروری نہیں کہ محبوب کا نام ہی آئے تو بندہ پتہ نہیں ایک ہی چیز سوچ لیتے ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری رات کا چراغ اے محبوب تم ہو. تھوڑا سا امیجن کریں، چراغ نہ ہو، یعنی لائٹ نہ ہو، کمرے میں ٹوٹل اندھیرا ہو، پھر حال کیا ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں بادشاہ جسے پاگل کرنا چاہتے تھے نا، اسے تہہ خانے میں ڈال دیتے، روشنی ختم، کھانا پینا نیچے بھیج دیتے، روشنی نہیں، مستقل اندھیرے میں رہتے بندہ پاگل ہو جاتا. روشنی، چراغ، بلب، کوئی چیز، مشعل، یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اگر چراغ کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اس کی نفسیات میں، تو میرے لیے چراغ تم ہو. رات کو چراغ کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں. اور میری نیند بھی ہے تو،
नींद इंसान के लिए सुकून है, इंसान का थकावट दूर होती है, नए सिरे से फिर काम को तैयार होता है। अगर नींद ही ना हो खाली और कुछ ना किया जाए, बंदे को सोने ना दिया जाए, तो क्या होगा? मेरा अपना हाल तो ये है कि 2 दिन मुझे रात जगह आ जाए तो मुझे तो बुखार हो जाता है। तो अपनी बात है, नींद कितना जरूरी है इंसानी जिंदगी में। इंसान ख्वाब भी नींद में देखता है ना, क्यों जी? इंसान ख्वाब भी नींद में देखता है, ख्वाब जरूरी है। तो शायर ये कह रहा है कि ए महबूब, नींद की अहमियत सारी दुनिया समझती है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मेरे लिए मेरी नींद भी तुम हो। कहना यह चाहता है मेरा सब कुछ तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो। वो जो पठाने का भी एक कहता ना काफी में कि मेरे दर्दां दा दामान भी तू, मेरे सूना दा सामान भी तू, मेरा सुर्खी बीड़ा पान भी तू। वो हर चीज का नाम लेता जाता है। और ये ख्वाजा फरीद की काफी है, उन्होंने अपने भाई के लिए लिखी, ख्वाजा फखरदार, जो उनके पीरों मुझसे था। ठीक, तो शायर ये कह रहा है कि ए महबूब, कितनी सादा बात है, इसे कहते हैं सहल मुमतने, सादा और आसान। मेरे लिए मेरा चिराग तुम हो, मेरी नींद वो भी तुम हो। शाम की शाम हूं, रुत बहार की है तू। तो इस शेर में इश्क की एक इंतहा है। जरा आप गौर करेंगे तो आपको फील होगा कि इश्क की इंतहा है इसमें। क्या भला? वो कह रहा है कि फिजा को कोई अच्छा नहीं समझता, मुझे लोग अच्छा नहीं समझते, गोया मैं फिजा हूं, मैं नापसंदीदा हूं। और है महबूब, आप तो बाहर की रुत हैं, आपको तो सारी दुनिया चाहती है। लेकिन आम सी बात है, लेकिन गहराई ये है कि मैं तो फिजा हूं, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे तो आने की तमन्ना कोई नहीं करता। वो जैसे ख्वाजा मीरदर्द ने कहा, हर चंद आई ना हूं पर इतना हूं ना कबूल, मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। हर चंद आईना हूं, अगरचे मैं आईना हूं, लेकिन इतना हूं ना कबूल, मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। यार कहते हैं मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मुझे तो लोग खिजान समझते हैं, मुझे तो लोग बदबख्ती की अलामत समझते हैं। लेकिन आपकी हैसियत क्या है? आप बाहर की रुत हैं, आपके आने की तमन्ना की जाती है। तो गालिब ने कहा, आमद बहार की है जो बुलबुल नगमा संज, उड़ती सी एक खबर है ज़बानी तैयोर की। तो बुलबुल ने गीत गाने शुरू कर दिए हैं, मुझे इसी से अंदाजा हुआ कि अब बाहर आने वाली है, फूल खिलेंगे, इसलिए बुलबुल पहले से तैयार बैठी है। तो शायर ये कह रहा है कि सारी बुराइयां मेरे अंदर है और सारी अच्छाइयां ए महबूब आपके अंदर है। फिर वही इशफाक अहमद वाली बात, उसने कहा था महबूब वो होता है जिसका उल्टा भी सीधा नजर आए। अब यहां जो बात है कि अगर सपोज शायर, आशिक और माशूक अगर मुकालमा भी कर रहे हैं और माशूक अपनी शोखी में सारी बुराइयां शायर के जिम्मे लगा रहा है कि तुम्हारा कसूर है, ये भी तुम्हारा कसूर है, तो वो कहता है इट्स ओके, आप ठीक कह रहे, बुराइयां मेरी है, कसूर मेरा है, बदसूरत मैं हूं, बदबख्ती भी मेरी है, लेकिन सारी अच्छाइयां आपकी हैं, बहार आप हैं, हुस्न आप हैं, दिलकशी आप हैं, तमाम अच्छे इख्तियार आप इसमें डाल लें, रुत बहार की है। यही तो शायर का कमाल है ना, कि सादा और मुख्तसर लफ्जों में उसने कैसे मानी को अंदर समो दिया है। जब कोई किसी को मनाना चाहे, एक कहे तुम्हारा कसूर है, दूसरा कहे हाँ तुम्हारा कसूर है, तो फिर तो कोई नहीं मना सकता ना किसी को। हाँ, उस वक्त सुलह हो जाती है जब एक फरीद ये कहे हाँ जी सारी गलतियां मेरी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मनाने आया हूं, फिर हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई ना? तो मेरे ख्याल में इतनी सी इस शेर की तशरीह काफी है। ठीक है जी, मेन थीम ये है कि सारी अच्छाइयां आपकी और सारी बुराइयां मेरी हैं, दिलकशी आप में है, रौनक आपसे है, आबादी आप हैं, और मैं तो निकम्मा हूं,
लेकिन इस निकम्मे को भी गालिब ने कहा था, हमने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। हमने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो कहता मैं हूं निकम्मा, मैं तो फिदा हूं, लेकिन मैं वो मुफ्त में आपको मिल रहा हूं तो रख लें। शेर नंबर 5, दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। अब मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं तुम्हारी जो सोच है ना, तुम नक्कादों की तरह ऐसी निकालते हो जो लिखने वाले के अपने ज़हन में ना हो। भाई हो सकता है, ऐसा होता है कि लिखने वाले ने वो बात सोची नहीं होती जो पढ़ने वाले उससे अखज़ कर रहे होते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि ये शेर जबरदस्त है, क्यों जबरदस्त है कि एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मजाजी। इश्क हकीकी है अल्लाह और उसके रसूल का है, या जो चीजें उनसे ताल्लुक रखती है, और एक है इश्क मजाजी, वो दुनियावी इश्क है। अब इस शेर की गहराई देखें, दोनों जगह फिट आएगा। अगर हम ये कहें कि शायर कह रहा है अल्लाह से कि अल्लाह, हम जितने भी दोस्त हैं, हमारी दोस्ती की वजह आपकी जात है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई हैं। अब ईमान वालों में कौन कौन था? देखें, सुहेब रूमी, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली, ये अरबी, लेकिन सब ऐसे मिल के रहे। वजह अल्लाह की जात पे ईमान है, और क्या था। दोस्ती की वजह खुदा की जात है। अब एक हदीस सुन लें जो पहले 9th की वो उसमें सिलेबस में थी, मन अहब्बा लिल्लाही व अबग़ज़ लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए किसी से नफरत करता है, अल्लाह की खातिर किसी को देता है, अल्लाह की वजह से किसी को नहीं देता, तो इस बंदे ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। एक बात। अगर हम ये कहें कि शायर ने इस शेर में अल्लाह के रसूल को खिताब किया है, तब भी ठीक है कि हुजूर की जात ऐसी है, लाखों करोड़ों अरबों लोग वो हुजूर के दीवाने हैं, और क्योंकि मरकज अकीदत एक है, कलमा एक हस्ती का पढ़ते हैं, सब दीवाने उसी जात के हैं, तो आपस में भी उनकी मोहब्बत है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि ये बातें फिट नहीं आ रही, तो फिर मैं भी गुजार दूं। मैं कह रहा हूं शेर बहुत गहरा है, इसके हकीकी पर फिट है। खुदा की जात के लिए ले ले, ज़हन में रख लें, तब ठीक है। नबी की जात के लिए ले लें, तब ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसके मजाजी के लिए भी दुरुस्त है। दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके चाहने वाले बहुत से होते हैं, और चाहने वालों की आपस में मोहब्बत भी इसीलिए होती है कि क्योंकि आप भी उसके चाहने वाले हैं, लिहाजा मेरे भाई हैं, ठीक है ना। वजह दोस्ती है तू। ऐसी शख्सियात होती हैं कि उनमें रकाबत नहीं होती, वो सबके लिए बराबर होते हैं, वो सबके लिए बराबर होते हैं। कुरान शरीफ की एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं हुजूर से, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। हुजूर आप रहम दिल हैं, ये लोग आपके गिर्द यूं हल्का बना के बैठे हैं। अगर आपकी जात ऐसी ना होती, ये लोग बिखर जाते, ये कभी एक होके ना रहते। तो इसके मजाजी पर भी ये शेर फिट है, और इसके हकीकी पर भी ये शेर बिल्कुल, ये हर किसी के ज़ौक़ की बात है कि शेर पढ़कर आपका ध्यान किधर जाता है। अगला शेर, इस सारी उम्र में ये ब्लैक बोर्ड की वो है, एक ही कमी है तू। अब देखें, हमने कहा था ना कि गजल के हर शेर में नई बात। वो अपने महबूब से मुखातिब है कि ए महबूब, जिंदगी में सब हासिल है, लेकिन जो ना मिला, चाहने के बावजूद, कोशिश के बावजूद जो हासिल ना हुआ, वो आप हैं। एक ही चीज की कमी महसूस होती है। अब इसी का एक और शेर है जो इस शेर को वाज़ेह करता है, नासिर का ही शेर है। वो क्या बना, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता,
जाने किस चीज की कमी है अभी। अब ये सवाल है, इसमें शायर ने सवाल करके छोड़ दिया था। दुनिया भरी हुई है, अरबों लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन शायर कहता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, पता नहीं किस चीज की कमी है। देखें, आपको हर तमन्ना पूरी हो जाए, एक तमन्ना ना हो पूरी, और वही सबसे ज्यादा अहम हो। नेचर यही है इंसान की कि जो हासिल है वो इतना अहम नहीं, जो हासिल नहीं हुआ वो ज्यादा अहम है। और शायर के लिए उसका महबूब, सपोज खुदा ना खास्ता वालिदैन जिंदा है और उनका कोई बेटा बेटी बहुत हो गया है, अब बोले प्रैक्टिकल मिसालें लेना, सब कुछ है, सब है, बेटा नहीं, किस चीज की कमी है? जी नहीं लगता, जी नहीं लगता। आंखें निकलवा दी थी एक तुर्क बादशाह ने, सल्जोकी बादशाह ने अपने बेटे की, नादिर शाह दुरानी, नादिर शाह जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया था पानीपत में, यहां से बहुत कुछ लूट के ले गया था, बेटा खिलाफ हो गया, बेटे की आंखें निकलवा दी। उसके बाद से नादिर शाह खत्म, उल्टा वजीरों से नाराज होता था कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं ये कर रहा था। तो सब हासिल है, एक शख्स ऐसा है जो हासिल नहीं है, वो महबूब हो सकता है, वो कोई और प्यारा हो सकता है। तो जो 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 क्वेश्चन इस सवाल में था, किस चीज की कमी है अभी, तो इसमें उसका जवाब है मेरी सारी उम्र में एक कमी है, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई लेकिन एक कमी है। फारसी शायरी जो उर्दू की माँ है, रूमी ने कहा दी शेख व चिराग हमी गिरदिश है। मैंने रात देखा कि एक बूढ़ा हाथ पे चिराग लिए हुए शहर की गलियों में घूम रहा है, शहर के गिर्द घूम रहा है। क्यों? दी शेख व चिराग हमी गिरदिश है। मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? कहता है कि दामदद मलूलम इंसान मारूबा, मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई इंसान मिले, ये मेरे इर्द गिर्द जितने तो जानवर है, कि दामदद मलूलम इंसान मारूबा। ठीक, जी हमरा ने सुस्त नासिर दिलम गिरफ्त, शेर खुदा और रुस्तों में दस्ताना मार हुआ। उन्होंने कहा मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे हमराही जो है ना ये सुस्त है, मैं एक ऐसा ढूंढ रहा हूं जो हजरत अली जैसा हो, और अगर काफिर हो तो कम से कम रुस्तम जैसा हो। नहीं, हमरा ने सुस्त नासिर दिलम गिरफ्त, मेरा दिल घुटा हुआ है, मेरे साथी सुस्त है। क्या ढूंढ रहा हूं? शेर खुदा और रुस्तम में दस्ताना मार हुआ। मैं शेर खुदा ढूंढता, रुस्तम ढूंढता। गुफ्तम के याफ्त में ना शबद जुस्ता इम्मा, मैंने कहा वो नहीं मिलेगा, हमने भी बहुत ढूंढा है। गुफ्तम के याफ्त में ना शबद जुस्ता इम्मा, गुफ्ता के याफ्त में ना शबद आना मार हुआ। उसने कहा वो जो नहीं मिलता उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं। एक की कमी सब है। 1.25 करोड़ का ये शहर है जिसमें आप बैठे हैं, आपके हम ख्याल कितने हैं? ओ भाई, कोई ऐसा 1.25 करोड़ की आबादी में मुझे तो एक भी मेरा नहीं, मैं तो वैसे परदेसी हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ। 1.25 करोड़ की आबादी में कोई एक ऐसा नहीं जो मेरी हर बात को सही कहे, मेरी गलत को भी सही कहे, मेरे उल्टे को भी सीधा कहे। 1.25 करोड़ में एक नहीं, ना मैं किसी का ऐसा हूँ, सीधी बात है। तो शायर ये कह रहा है कि सारी उम्र में मुझे सब हासिल हो गया, दौलत, इक़्तिदार, शोहरत, हुकूमत, पता नहीं क्या, एक कमी है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई ना?